Hello and good evening everyone and welcome on our YouTube channel Sudhir Online Classes. So first of all, very sorry to all of you. Due to some personal problems, I was not able to give current classes in these 3 days. So I try to give all the current affairs of these 3 days in the form of 30 questions. These 30 questions will cover top current affairs of these 3 days, and I hope you will satisfied with this 30 questions, and your current affairs of 3 days will be recovered soon. So let us start our classes with our 30 MCQs. So let us start our first MCQ. Which Indian cricketer has been recommended for the Rajiv Gandhi Khel Ratan Award by the National Sports Award Committee? So the options are A. Shikhar Dhawan, B. Jasprit Bumrah, C. Rohit Sharma, D. KL Rahul. So the correct option is, you have given 5 seconds to give answer of each questions. And I'm requesting to you all, please join the current affairs in the time of live chat, so you can give answer in the live chat. And if you are feeling any problem, then you can tell us in the live chat, so your problem solution can be as soon as possible. So the correct option is option C, Rohit Sharma. So Rohit Sharma was one of the name that is recommended by the National Sports Committee for the Rajiv Gandhi Khel Ratan Award. The total names which are given for this award was Rohit Sharma, who is a cricketer, table tennis champion Manila Batra, Paralympian player Mariappan Thangvelu, D, and last wrestler Vinesh Fogart. So these 4 names are recommended for the Rajiv Gandhi Khel Ratan Award by the National Sports Indian Committee. So the next question is question second. When will the first ever World Solar Technology Summit be held? So you have to tell that one of the first summit which is held for the World Solar, which is the topic of that summit, when it is held. A. August 20th, B. September 8th, C. September 12th, D. August 31st. So आपको बताना है कि जो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट है, जो फर्स्ट टाइम हुआ है, वो कब हुआ, तो उसका जो हेल्ड हुआ उसकी डेट बतानी है आपको. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, September 8th. तो जो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट है, जो जिसका जो टॉपिक था वो सोलर पावर से रिलेटेड था, तो वो हेल्ड हुआ था September 8th को. तो ये जो समिट है ये इनॉग्रेटेड किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड ये जो हेल्ड हुआ था ये हेल्ड किया गया था, मतलब जो ऑर्गेनाइज किया था ये किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने, ISA. नेक्स्ट इज दैट इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. Guys, I am doing this class for recently because if you feel bored, then it will be difficult for you to understand these questions and the fact. Who has been appointed as the new Meghalaya governor? So you have to tell who is the new governor of Meghalaya. A. Satyapal Malik, B. Nazma Heptulla, C. P.S. Sridharan Pillai, D. R.N. Ravi. So who is appointed recently as the new Meghalaya governor? तो जो आंसर है वो है आंसर ए, सत्यपाल मलिक. सॉरी, बट द आंसर इज ए, सत्यपाल मलिक. तो जो सत्यपाल मलिक हैं वो पहले भी गोवा के जो गवर्नर है वो रह चुके हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सत्यपाल मलिक इज़ ए फॉर्मर गोवा गवर्नर. अब इनको रिप्लेस किया गया, फिर जो सत्यपाल मलिक से जो पहले गवर्नर थे वो थे तथागता रॉय. तो जो फॉर्मर या फिर जो मेघालय गवर्नर जो अभी अपॉइंट हुए सत्यपाल मलिक ने, उन्होंने रिप्लेस किया है तथागता रॉय. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट नेम एंड मे बी यू कैन प्रोनाउंस इट इजीली. सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ बीइंग द गवर्नर ऑफ गोवा? तो अभी जो गवर्नर ऑफ गोवा के लिए जो एडिशनल चार्ज है गवर्नर ऑफ गोवा का, वो किसे अपॉइंट किया गया इस पोस्ट के लिए? तो जो आंसर हैं वो 4 ऑप्शंस हैं.
ए वजूभाई वाला, बी आचार्य देवव्रत, सी आरिफ मोहम्मद खान, डी भगत सिंह कोश्यारी. So who is appointed as the additional governor of Goa? So the correct option is option D, Bhagat Singh Koshari. So he is given the post of additional governor of Goa. Next is the question number 5th. When will PM Modi announce स्वच्छ सुरक्षा सर्वेक्षण 2020 रिजल्ट? तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण है जो कि 2020 जो कि 5th एडिशन है इसका, वो मतलब मोदी ने जो इसका रिजल्ट है वो कब अनाउंस किया या फिर करेंगे? तो जो ऑप्शंस हैं ए अगस्त 20, बी सितंबर 2, सी सितंबर 9, डी सितंबर 30. जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है ये इंडिया में जो इसका रिज़ल्ट है वो 5th टाइम मतलब अनाउंस होने जा रहा है, तो ये 5th एडिशन है. तो इसका रिज़ल्ट है वो पीएम मोदी कब अनाउंस करेंगे? तो जो आंसर है वो है, प्लीज़ गिव योर आंसर इन द लाइव चैट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए अगस्त 20. जो पीएम मोदी है वो जो इसका जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2020 है इसका जो रिज़ल्ट है वो अगस्त 20 को डिक्लेयर करेंगे. और इसके ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है ये 5th एडिशन है कि या फिर कह सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है इसका स्वच्छ सर्वेक्षण का वो 5th टाइम जो रिज़ल्ट है वो है 2020 का. अब इस जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है इसमें जो टोटल 129 जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे किसको? जो कि जो टॉप परफॉर्मिंग सिटीज और जो स्टेट हैं उनमें से जो 129 जो सिटीज़ हैं या फिर स्टेट हैं जो कि टॉप हैं उनको अवार्ड किया जाएगा. अभी ये जो अवार्ड है 129 अवार्ड हैं जो कि टॉप सिटीज और स्टेट को दिए जाएंगे, ये एक प्रोग्राम में दिए जाएंगे जो कि है स्वच्छ महोत्सव. यू कैन सी द फैक्ट guys, I written the fact that are not possible for you to understand because of some pronunciation or some extra problem due to net. So I written down these facts which are very important for you also. This is the turn of question number 6. Which institute ranked first in the list of top innovative educational institute in India? So the options are A, IIT Delhi, B, IIT Madras, सी IIT बॉम्बे, डी IIT कानपुर. सो जो इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया ने एक लिस्ट बनाई है जो कि एक उसमें जिसमें जो टॉप इनोवेटिव जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके नेम है. तो टॉप पे कौन है वो आपको बताना है, जिसके जो 4 ऑप्शंस में है उसमें से एक करेक्ट है. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी IIT मद्रास. जो IIT मद्रास है वो जो ये लिस्ट है इसमें टॉप है, इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास वो टॉप पे है. सो ये जो IIT मद्रास है ये सेकंड टाइम मतलब कि फर्स्ट टाइम जो पिछले ईयर में भी इसने टॉप किया था और अब की बार भी टॉप किया, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो IIT मद्रास है वो उसने जो लिस्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की उसमें सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर में टॉप किया है. So institute was ranked number 1 in the Atal ranking of institutions on innovation achievement, and this list was released by the Vice President Venkaiah Naidu. This is the turn of question number 7th. Israel for the first time established direct phone link recently with which nation? तो जो इज़राइल है उसने डायरेक्ट फ़ोन लिंक्स सेटअप किए हैं रिसेंटली, तो मतलब किसके साथ जॉइंट करके ये सेट किए हैं? तो जो ऑप्शंस हैं ए सऊदी अरबिया, बी कतार, सी UAE, डी रशिया. ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो 15 अगस्त को भी हुआ था, जो कि आपने यदि करंट अफेयर नहीं 15 अगस्त के नहीं देखे हैं तो आप जो क्लास है वो दोबारा देख सकते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात. जो इज़राइल है और UAE है उन्होंने दोनों ने मिलकर जो डायरेक्ट टेलीफोन जो सर्विसेज हैं वो सेटअप किए हैं. अब ये जो दोनों जो सेटअप हुए हैं तो इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर थे दोनों कंट्रीज़ के उन्होंने एक दूसरे को ग्रीटिंग किया या फिर ग्रीट्स किया और एक दूसरे को मतलब थैंक यू बोला.
So the next is the turn of question number 8. Which nation's presidential election result 2020 have caused massive uproar and protest? So the options are A. Armenia, B. Belgium, C. South Korea, D. Belarus. सो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे किसी कंट्री में, रिज़ल्ट जिसका जो रिज़ल्ट 2020 है उसके कारण जो कंट्री है उसमें काफ़ी विरोध हुआ और काफ़ी भीड़ वगैरह से जो नुकसान है वो हुआ। तो मतलब कौन सी कंट्री में जो इलेक्शन है ये हुए थे जिसके कारण इतना मतलब ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ या विरोध किया पब्लिक ने? तो जो देर आर 4 ऑप्शंस, प्लीज़ गिव योर आंसर इन द लाइव चैट गाइज, ट्राई योर बेस्ट। So the correct option is option D, बेलारूस। जो बेलारूस है उसमें अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे जिनका जो 2020 उनका जो रिज़ल्ट जो अनाउंस हुआ उससे जो पब्लिक है उसमें काफ़ी हंगामा हुआ और विरोध किया पब्लिक ने इस रिज़ल्ट का। सो जो प्रेसिडेंट हैं वो जो यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स, उन्होंने अभी एक इमरजेंसी समिट हेल्ड किया जो कि जिसमें जो ईयू लीडर्स थे या फिर यूरोपियन जो यूनियन के जो लीडर्स थे उनको बुलाया गया ताकि जो ये सिचुएशन हुई है इसके बारे में डिस्कस कर सकें और जो बेलारूस की जो सिचुएशन है इसको हैंडल कर सकें। सो द next question is question number 9. Find the state government which has launched Yellow Chain e-commerce platform on Indian Independence Day 2020. तो जो रिसेंटली इंडियन इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट हुआ पूरे इंडिया में, जो 74th इंडियन इंडिपेंडेंस डे था, उसमें किसी जो स्टेट है उसकी गवर्नमेंट ने येलो चेन एक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया है। तो किस स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है? तो देयर आर 4 ऑप्शंस, ए असम, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी नागालैंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नागालैंड। तो जो नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उसने जो येलो चेन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया। ये जो इसकी जो लॉन्चिंग है वो जो स्टेट लेवल पे जो सेलिब्रेशन हो रहा था इंडियन इंडिपेंडेंस डे का, सेक्रेटेरिएट जो प्लाज़ा है कोहिमा में उस पे इसको लॉन्च किया गया। फिर इसकी जो लॉन्चिंग की जो अप्रूवल है वो जो सेक्रेटेरिएट प्लाज़ा कोहिमा में है जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस डे के दौरान इसकी जो लॉन्चिंग है वो मतलब अप्रूव्ड की गई। इसकी जो एक्सपेक्टेड या फिर जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि प्रमोट करना, लोकल जो बिज़नेस है उसको प्रमोट करना और जो एंटरप्रेन्योरशिप है जो स्टेट में उसको इंक्रीज़ करना। अब ये जो येलो चेन है ये मतलब एज हम यदि इसको देखें तो ये एक न्यू इरा इन नागालैंड मार्केटिंग, कि ये जो नागालैंड स्टेट की जो मार्केटिंग है उसमें एक नई डेवलपमेंट और नई टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी फेमस हुआ। तो ये जो येलो चेन है ये डेवलप किया गया इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ नागालैंड। तो जो इंस्टीट्यूट है जिसने इसको येलो चेन को डेवलप किया वो था इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ नागालैंड, इडान। अब जो इडान है जिसने येलो चेन को रिलीज़ किया, इसने ही येलो चेन जो नेम है उसके नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ अ फैक्ट फॉर यू कि जो इडान है उसने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नाम से है। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो दैट इज़ येलो चेन। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 10th. How much pound worth Innovation Challenge Fund 2020 was launched by UK government for India to tackle COVID-19 challenges and climate change? तो जो कोविड-19 की वजह से जो चैलेंजेस हो रहे हैं या फिर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उनको सॉल्व करने के लिए जो यूके गवर्नमेंट है उसने इनोवेशन चैलेंज फंड 2020 में कितने जो अमाउंट है वो डोनेट किए हैं। सो देयर आर 4 ऑप्शंस, ए यूरो 3 मिलियन, बी यूरो 2 मिलियन, सी यूरो 5 मिलियन, डी यूरो 4 मिलियन। So the correct option is option A, यूरो 3 मिलियन। तो जो गवर्नमेंट ऑफ यूके है इसने इनोवेशन चैलेंज फंड 2020 में 3 मिलियन
जो हैं वो इंडिया से प्रोवाइड किए हैं, जो कि अब ये जो 3 मिलियन है ये जो इंडिया है में है किस किस स्टेट को दिए जाएंगे, तो महाराष्ट्र को दिए जाएंगे और कर्नाटका को। अब इनकी जो अमाउंट है वो दोनों में हाफ हाफ इक्वली डिवाइड की जाएगी। जो महाराष्ट्र है उनको 1.5 यूरो मिलियन मिलेगा और जो कर्नाटका है उसको भी यूरो 1.5 मिलियन दिया जाएगा। अब जो ये यूरो 3 मिलियन है डोनेट करना, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो इंडियन जो साइंटिस्ट हैं उनको सपोर्ट करना एकेडमिया और जो इंडस्ट्री है दोनों जो सेशन है उनमें सपोर्ट करना, ताकि जो कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है या फिर क्लाइमेट चेंजिंग की जो प्रॉब्लम है उनसे हम टैकल कर सकें। अब जो ये इनोवेशन चैलेंज फंड 2020 है ये 3 मिलियन इंडिया को प्रोवाइड किया गया है। So this is the turn of question number 11th. Which bank has launched digital अपनायन campaign to promote digital banking? तो डिजिटल अपनायन जो कैंपेन है वो लॉन्च की गई है। इसका जो प्रमोट है मतलब इसका जो मोटिव है वो है कि जिसको जो डिजिटल बैंकिंग है उसको प्रमोट करना। तो किस बैंक ने इसको लॉन्च किया है? सो देयर आर 4 ऑप्शंस। ए इंडियन ओवरसीज बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी कैनरा बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। So there are 4 options in which different banks are given, from which one of the bank has launched this digital Apnayan campaign, and the motive of this is to increase digital banking. So the correct option is option D, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और जो CEO हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं SS मल्लिकार्जुना राव, जिन्होंने ये जो डिजिटल अपनायन कैंपेन है इसको लॉन्च किया है। इसका जो मोटिव है कि वो इंक्रीज़ करना कस्टमर्स को कि वो जो डिजिटल बैंकिंग जो चैनल्स हैं उसको प्रमोट करे और पार्टिसिपेट करे, कि वो डोनेट कर सके PM केयर फंड में। कोविड-19 से जो प्रॉब्लम हो रही है, जो फंड जो अकाउंट बनाया गया PM केयर्स फंड उसमें डोनेट करें। अब ये जो कैंपेन्स है ये जो शुरू होगी वो 15 अगस्त 2020 से और टिल 31 अगस्त 2021। तो जो ये कैंपेन है ये शुरू की गई 15 अगस्त 2020 से और ये मतलब चलेगी कहाँ कब तक? 31 मार्च 2021 तक। अब इसमें जो PNB बैंक है उसने मतलब अपना डोनेशन देते हुए कहा कि जो बैंक है वो कंट्रीब्यूट करेगा ₹5 टुवार्ड्स द PM केयर फंड, की जो बैंक है वो कंट्रीब्यूट करेगा ₹5 इन PM केयर फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ ईच कस्टमर हु कंडक्ट द फर्स्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो कोई भी कस्टमर यदि कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन करता है या फिर किसी के अकाउंट में जो पैसे वो ट्रांसफ़र करता है उसमें से जो ₹5 हैं जो PNB बैंक से रिलेटेड होंगे वो डोनेट होंगे PM केयर्स फंड में। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 12th. The astronomers at which institute has found a baby galaxy called SPT 041847 through ALMA telescope recently? तो एक बेबी गैलेक्सी है वो अभी जो रिसर्चर्स है या फिर जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने नोट डाउन की है कि एक बेबी गैलेक्सी इन द सैटेलाइट। तो कौन सी जो यूनिवर्सिटी है या फिर इंस्टीट्यूट है जिसने जो बेबी गैलेक्सी है उसको नोटिस डाउन किया है? तो ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, डी मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो जो ये बेबी गैलेक्सी है इसका जो नेम है वो SPT 041847 रखा गया है। और जो ये बेबी गैलेक्सी है ये कैसी दिखती है? इट्स लुक अलाइक ऑफ मिल्की गैलेक्सी एट 12 मिलियन light years away using the Atacama Large Million Meter Sub-Millimeter Array ALMA telescope। तो जो ALMA टेलीस्कोप है उससे जब इसको नोट डाउन किया गया तो इसकी जो एज है वो 12 बिलियन लाइट ईयर्स मतलब पुरानी है।
अब जो बिलियन गैलेक्सी, जो बेबी गैलेक्सी है वो क्या होती है? तो जो बेबी गैलेक्सी है वो जो गैलेक्सी, जो यंग गैलेक्सी होती है, जो कि 1/6 साइज़ होती है, जो कि अपनी जो ओरिजिनल जो गैलेक्सी होती है उससे 1/6 मतलब जो साइज़ होता है उसका छोटा होता है, और 1/200 जो मास है वो होता है जो अपनी जो रियल गैलेक्सी होती है उससे। और ड्यू टू मैसिव सप्लाई ऑफ गैस विद इन इट्स मीन्स it produced 10 times as many as stars. So this is about a million galaxy. Next is the question number 13th. Who authored the book named The Beauty of Living Twice? So this is a book named The Beauty of Living Twice. Who is the author of this book? A. Angelina Jolie, B. Jennifer Lawrence, C. Gal Gadot, D. Sharon Stone. So the correct option is option D, शरोन स्टोन। जो स्टोन है वो ऑथर हैं इस बुक के, जो कि नेम है द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस। ये जो शरोन जो स्टोन है वो एक हॉलीवुड एक्टर हैं। उन्होंने जो ये बुक है वो अपनी जो हिस्ट्री है, लाइफ की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर ये जो बुक है वो रिटन डाउन की है। इस बुक का जो कवर है वो उन्होंने ट्विटर पे अनवेल किया है या फिर ट्विटर पे डाला था। अभी इसकी जो बुक है, इसकी जो पब्लिशिंग है वो करेंगे अल्फ्रेड ए नोफ, and it is set to release both in hardcover and e-book. So this book will be released in the both form, hard book and on the, we can say, on the net in the form of e-book. Next is the question number 14th. Name the person who written the book titled Full Spectrum, India's Wars 1972 to 2020. So this is the name of the book, Full Spectrum, India's Wars 1972 to 2020. So who name the person who write that down this book? A. Idris Latif, B. Kapil Kak, C. Arjun Subramaniam, D. Manmohan Bahadur. Guys, current affairs are not a subject, it is the main topic and base of all subject that you are covering from 6th to 12th class. And it is very important to read in the morning newspapers to see the classes of current affairs, so that you can you can prepare your base. So the correct option is option C, Arjun Subramaniam. तो जो अर्जुन सुब्रमण्यम है वो एक रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं, और उनकी जो बुक है वो मतलब क्या शो करती है, मतलब इसका जो टॉपिक है, मेन जो टॉपिक्स हैं वो है कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट है इंडिया वॉर का, और जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इन दिनों में जो इंडिया में, उसकी जो रिज़ल्ट है ये बुक है, कि मतलब जो इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए या फिर कम्प्रिहेंसिव अकाउंट हुआ वार के कारण, जो लॉसेस हुए, उस जो बुक है उसमें रिटन डाउन जो अर्जुन सुब्रमण्यम है उसने किया है। अब यदि हम इस टॉपिक को शॉर्ट करें तो द बुक पोर्ट्रेज द कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट of the war and conflicts contemporary India over the past 5 decades next month. अब ये जो बुक है वो पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडियाज़ प्राइवेट लिमिटेड। तो जो फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर्स 1972 टू 2020 जो बुक है वो पब्लिश की जाएगी बाय हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। Guys, if you are feeling difficulty in understanding my fact orally, so you can see the fact that are very important. I have written down in the questions. So this is the turn of question number 15. Who authored the book titled Thorurosaurus? So this is the book whose title is Thorurosaurus, and who is the author of this book? So A. Tarun Vijay, B. अनिल बलूनी, सी महेंद्र सिंह मेहरा, डी शशि कपूर थरूर। So the correct option is, please try your best and give your answer in the live chat. And it is a, we can say, test for those students who reading newspapers and see news on the television and radio.
So judge yourself. So the correct option is option D, Shashi Tharoor. So this book authored and member Shashi Tharoor is the author and member of parliament, and it is famous for his excellent language of diction. So this titled Thesaurus, the book name is a word play of name mixed with the word Thesaurus, which is a book or software that help find synonyms for words. तो जो ये टाइटल्ड है थ्रोरोसोरस, ये एक मतलब जो कॉम्बिनेशन है थेसरस और जो उनका जो नेम का जो सरनेम है थ्रूर, उनको जो मिक्स वर्ड प्ले करके जो ये टाइटल्ड है वो दिया गया है, क्या है, थ्रोरोसोरस. So this title has been given on the basis of his name and the word Thesaurus. Next, this book is published by Penguin Random House, India, and will have 53 words, one for each letter of the alphabet. Next is the turn of question number 16. Who had the committee formed by central government to reconsider the minimum age for marriage for women? तो अभी जो जनरली जो वुमेन की जो एज है मैरिज के लिए वो 18 है, लेकिन इस मैटर पे जो रिकन्सिडरेशन है वो की जा रही है, तो उसके लिए एक कमेटी सेटअप की है. तो उस कमेटी की जो चेयरमैन है वो कौन होंगे? सो देयर आर 4 ऑप्शंस. ए विनोद पॉल, बी जया जेटली, सी वसुधा कमात, डी दीप्ति शाह. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जया जेटली. तो जो कमिटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप की है कि जो रिकन्सिडरेशन है मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर वुमेन है वो किया जाए, तो उसके लिए जो कमिटी के जो हेड हैं वो होंगी ऑप्शन बी, जया जेटली. तो जया जेटली इज़ द हेड ऑफ दिस कमिटी एंड दिस कमिटी इज सेट अप टू रिकन्सिडर द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर वुमेन एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन आफ्टर अ रिपोर्ट इज सबमिटेड. मीन्स यदि कोई रिपोर्ट सबमिट होती है कि जो एज है उससे अंडर एज के ड्यूरिंग यदि कोई मैरिज की जाती है और उसकी कोई रिपोर्ट सबमिट होती है कि तो उसके ऊपर जो अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लिया जाएगा. अब जो गवर्नमेंट है वो रिकन्सिडर क्यों कर रही है कि जो मैरिज ऑफ जो वुमेन है, एज मैरिज ऑफ जो वुमेन है वो रिकन्सिडर क्यों करी है? क्योंकि गवर्नमेंट इज़ फोकस्ड टुवार्ड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ इंडिपेंडेंसी फॉर वुमेन. सो जो गवर्नमेंट है वो जो मैरिज एज है वीमेन की उसको रिकन्सिडरेशन इसलिए करी है ताकि जो वीमेन है उसको जो इक्वल स्टेटस है सोसाइटी में वो दिया जा सके. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 17th. द ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे इज मध्य प्रदेश वॉज नेम्ड आफ्टर वोम. तो जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे है उसका जो नेम है वो चेंज कर दिया गया है या फिर किसी जो फेमस लीडर्स है कोई और पॉलिटिशियन है उसके ऊपर रख दिया गया है. सो देयर आर 4 ऑप्शंस. ए सुषमा स्वराज, बी अरुण जेटली, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी बाबूलाल गौर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी. तो जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में है उसके जो रीनेम किया गया है किसके ऊपर? जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उसके ऊपर जो एक्सप्रेस वे का जो नेम है वो चेंज कर दिया गया है. और एंड एवरीबडी नो दैट ऑन 16 अगस्त 2020 इट वॉज सेकेंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी. एंड दिस announcement was made by MP CM Shivraj Singh Chauhan during addressing the gathering on his second death anniversary on 16th August 2020. And this Gwalior Chambal Expressway will be said as Atal Bihari Vajpayee Chambal Progress Way. And with this renamed of this expressway, our CM also stated that a grand statue of Vajpayee will be set up in भोपाल. कि जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे है उसके साथ उसका नेम चेंज करने के साथ साथ जो वाजपेयी जी हैं उनकी जो ग्रैंड स्टैचू है वो सेटअप की जाएगी भोपाल में. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 18th. द इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड टालेस्ट पायर ब्रिज अक्रॉस इजाजी रिवर इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज.
तो जो इंडियन रेलवे है वो कंस्ट्रक्ट करेगी वर्ल्ड का जो टालेस्ट पायर ब्रिज है इजाजी रिवर पे कंस्ट्रक्ट करेगी। तो वे किस स्टेट में कंस्ट्रक्ट करेगी? ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी लद्दाख, डी मणिपुर। सो इसमें एक यूनियन टेरिटरीज है और एक स्टेट है, तो इनमें से किस में जो ब्रिज है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मणिपुर। जो मणिपुर है उसमें जो ब्रिज है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ 111 किलोमीटर लॉन्ग जूरीबम ट्रिपल इम्फाल प्रोजेक्ट। तो ये जो ब्रिज है ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अंडर द 111 किलोमीटर लॉन्ग जूरीबम ट्रिपल इम्फाल प्रोजेक्ट के अंदर इसको बिल्ड किया जाएगा। अब ये जो ब्रिज है इसकी जो हाइट होगी 141 मीटर होगी और ये इजाजी रिवर पे बिल्ड किया जाएगा जो कि मणिपुर में है। इसके जो आउटले है या फिर जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है वो 280 करोड़ है। और जो इसके कंप्लीशन के बाद जो वर्ल्ड जो हाईएस्ट जो ब्रिज का जो रिकॉर्ड है जो कि 139 मीटर्स का है माला रिजे का यूरोप में, उसको सरपास किया जाएगा। या फिर जो वर्ल्ड हाईएस्ट पायर ब्रिज है वो जो इंडियन रेलवे है वो मणिपुर में जो इजाजी रिवर पे जो कंस्ट्रक्ट होगा उसको बोला जाएगा। सो जो ये प्रोजेक्ट है इसकी जो कंप्लीशन है वो एक्सपेक्टेड की जा रही है मार्च 2020 में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज you can read down this fact. If you are not feeling comfortable verbally, then you can read down this fact and note down also. So question number 19th is, which ministry has launched Nasha Mukt Bharat campaign? So this is the name of campaign Nasha Mukt Bharat. Which ministry launched this campaign? A. Ministry of Home Affairs, B. Ministry of Health and Family Affairs, C. Ministry of Social Justice and Empowerment, and D. Ministry of Housing and Urban Affairs. So the correct option is option C. Ministry of Social Justice and Empowerment will launch Nasha Mukt Bharat campaign, and it will be launched by the state government and 272 district collectors, and it will launched for 7-month long anti-drugs campaign, namely नशा मुक्त भारत और ड्रग फ्री इंडिया। तो जो ड्रग फ्री इंडिया है या फिर नशा मुक्त भारत है ये 7 मंथ लॉन्ग एंटी ड्रग कैंपेन है जो कि 31 मार्च 2021 तक रहेगी। अब जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के वो जो हम कह सकते हैं थावरचंद गहलोत हैं, जो कि जिन्होंने मतलब इस जो कैंपेन है इसको ज़्यादा अफेक्ट मिलाने के लिए जो डीसीज़ हैं, एनजीओज़ हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं उनको एड्रेस किया, या फिर उनके लिए जो इसको इम्पिटस देने के लिए उनको एड्रेसिंग किया। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 20th। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत inaugurated new building of National Institute of Social Defense in which city? सो जो थावरचंद गहलोत हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ SJE सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के हैं, उन्होंने इनोग्रेशन की है एक न्यू बिल्डिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। तो वो किस सिटी में जो इनोग्रेशन है वो की है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी न्यू दिल्ली, डी नोएडा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। तो जो ये बिल्डिंग है वो इनोग्रेट किया या फिर बिल्ड की जाएगी किस सिटी में? न्यू दिल्ली में। और ये जो बिल्डिंग है वो जो द्वारका एरिया है न्यू दिल्ली में उसमें कंस्ट्रक्ट की जाएगी। अब जो बिल्डिंग है इसका मेन मोटिव या फिर
कि इसका जो वर्क है वो क्या है कि द बिल्डिंग विल सर्व एज द नोडल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर फॉर इट्स 3 मेन डिविजन्स नेमली। तो जो 3 ब्रांचेज है उसके ऊपर जो मेन सेंटर का वर्क एज ए मेन सेंटर वर्क करेगी ऑफ नोडल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। तो 3 जो डिविजन्स हैं वो कौन कौन से हैं जिसके ऊपर जो मेन डिवीज़न है ये बिल्डिंग है उसका वर्क करेगी। सो देयर आर 3 डिविजन्स नेमली National Center for Drug Abuse Prevention, Old Age Care Division and Social Defense. So these are the 3 centers and the 3 branch on which the main center will be constructed soon. This is the question number 21. ADB has approved how much loan for the Delhi Meerut Regional Rapid Transit System. तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने लोन अप्रूव किया है किसके लिए, एक प्रोजेक्ट है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो कितना लोन है वो अप्रूव्ड किया है। देयर आर 4 ऑप्शंस, ए USD 1 बिलियन, बी USD 2 बिलियन, सी USD 3 बिलियन, डी USD 1.5 बिलियन। So how much loan has been approved by Asian Development Bank for the Delhi Meerut Regional Rapid Transit System? So the correct option is option A, United States डॉलर 1 बिलियन। तो ये जो लोन है ये अप्रूव किया गया है ताकि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो सपोर्ट कर सके जो कंस्ट्रक्शन हो रही है हाई स्पीड मॉडर्न जो दिल्ली मेरठ जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो कि हाई स्पीड सिस्टम है उसको सपोर्ट उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको सपोर्ट करने के लिए जो लोन है वो अप्रूव्ड किया गया है। Next is the turn of question number 22. Which company has acquired a majority stake in NetMeds? तो एक जो NetMeds है वो एक ट्रस्टेड इंडियन ऑनलाइन मेडिकल स्टोर है। अब इसकी जो मेजॉरिटी स्टेक है वो किस कंपनी ने एक्वायर की है, ए रिलायंस रिटेल, बी टाटा सन्स, सी अमेजन, डी फ्लिपकार्ट। I know guys that the class is going so long that you are not expected, but please support us and take the class at the time. So the correct option is option A, Reliance Retail. So Reliance Retail has acquired this majority stake in NetMeds, which is a trusted Indian online medical store. Next is the question number 23. सो जो ये इसके अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट है वो 620 करोड़ है। नेक्स्ट इज द 23. हु इज़ द न्यू IPL टाइटल स्पॉन्सर? सो व्हाट इज़ द न्यू टाइटल दैट इज़ गिवन फॉर द IPL? ए टाटा सन्स, बी ड्रीम 11, सी बी ज़्यूज, डी अनअकैडमी। सो दीज आर फॉर वी कैन से एप्स और इंस्टीट्यूट. Which is the title of this new IPL 2020? So the correct option is option B, Dream 11. So Dream 11 has won an IPL 2020 title sponsorship bid for 22 crores. तो जो हाईएस्ट जो बोली है IPL 2020 के जो टाइटल के लिए वो 222 करोड़ थी और जिसकी जो स्पॉन्सरशिप है वो ड्रीम 11 है उसने वोन की है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 24. विच नेशंस प्रेसिडेंट रिजाइंड आफ्टर बीइंग डिटेन्ड एट गन पॉइंट बाई मटनिंग सोल्जर्स? सो जो एक नेशंस के प्रेसिडेंट है जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि उनको जो गन है उस गन पॉइंट है उसके ऊपर उनको ब्लैकमेल किया गया। तो कौन से जो नेशंस प्रेसिडेंट है उन्होंने रिज़ाइन किया? तो देयर आर 4 ऑप्शंस, ए बेलारूस, बी सीरिया, सी टर्की, डी माली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, माली। सो जो माली के जो नेशन प्रेसिडेंट है उन्होंने रिज़ाइन किया और जो रिज़ाइन का रीज़न था कि जो सोल्जर्स हैं उन्होंने उनको गन पॉइंट पे जो रेजिग्नेशन है उनसे वो लिया। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 25. Which Indian sports authority will be providing immediate sports to 61 athletes who are not employed due to the COVID-19 pandemic? तो एक इंडियन स्पोर्ट्स जो अथॉरिटी है उसने कोविड-19 के कारण जो 61 एथलीट हैं उनको मतलब सपोर्ट करने की डिसाइड किया है।
तो मतलब कौन कौन से जो कमेटी है वो मतलब कौन सी कमेटी है जिसने ये डिसाइड किया है? सो देर आर 4 ऑप्शंस: ए BCCI, बी हॉकी इंडिया, सी बैडमिंटन फेडरेशन, डी फुटबॉल फेडरेशन। सो जो ये 4 ऑप्शंस में जो ये नेम है ये एक इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी के नेम है, जिसमें से एक इंडियन स्पोर्ट्स कमेटी ने डिसाइड किया कि वो जो 61 एथलीट्स हैं जो कि काफ़ी अफेक्ट हुए हैं क्योंकि जो उनको एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं मिल पाई, जो रीज़न है वो कोविड-19 है, हम सब जानते हैं। तो कौन सी इंडियन स्पोर्ट्स कमेटी ने डिसाइड किया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, हॉकी इंडिया। सो जो हॉकी इंडिया जो इंडियन स्पोर्ट्स कमेटी है उसने डिसाइड किया है, और इस जो 61 एथलीट्स है उसमें इंक्लूड होंगे जूनियर और सीनियर लेवल के जो मेल और फीमेल हैं दोनों, कि जो जूनियर और सीनियर लेवल के जो मेल एंड फीमेल हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, जो कि एक 61 एथलीट्स में से इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 26. Which nation has been promised to be given priority in India's COVID-19 वैक्सीन? तो जो इंडिया के जो कोविड-19 के जो वैक्सीन होंगे उसमें किस नेशन को मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी कि उसको भी मतलब जो प्रोवाइड किए जाएंगे? सो देर आर 4 ऑप्शंस: ए नेपाल, बी भूटान, सी मालदीव्स, डी बांग्लादेश। So the correct option is option D, Bangladesh. So this is and this announcement is made by our India's foreign secretary, and this announcement is made during the concluding day of 2-day visit to Bangladesh, that the country will get priority in the COVID-19 vaccination produced by India. तो जो ये अनाउंसमेंट है ये मतलब जो अनाउंसमेंट है ये की गई इंडियाज़ फॉरेन सेक्रेटरी, and this announcement was made during the 2-day visit of our foreign minister in Bangladesh. और जो उनकी स्टेटमेंट थी उनमें उन्होंने कहा कि जो इंडिया में जो वैक्सीन प्रोड्यूस होंगे उसकी जो प्रायोरिटी या फिर जो वैक्सीनेशन है वो बांग्लादेश को मतलब एज ए प्रायोरिटी दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 27. इंडिया विल बी बिल्डिंग अ न्यू रोड टू विच रीजन? तो जो इंडिया है वो एक न्यू रोड बिल्ड करने जा रही है, तो वो किस रीजन में होगा? ए नथुला पास, बी पेलिंग, सी लद्दाख, डी लचोंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लद्दाख। तो ये जो न्यू रोड है वो मनाली से ले तक होगा, और इसकी जो ये क्यों बिल्ड करा जाता कि जो फैसिलिटेट कर सकें जो ट्रूप मूवमेंट है उनको फैसिलिटी मिल सके कि वो लद्दाख तक जो मूवमेंट है वो अच्छे से कर सके विदाउट एनी ट्रबल। और इसकी जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो ट्रूप है वो लद्दाख तक जा सके और जो एनिमी है उसको नज़र भी ना आए। सो द main motive of this is built to facilitate troop movement to Ladakh without observation from the enemy, and this new road will provide the third link between the highest altitude union territories and rest of the country. So you know all that Ladakh is the highest altitude point of India, and this road will provide third link between this connection of rest of the country and the Ladakh Union Territory. Next is the question number 28. The Mandodya railway station of which state is renamed as Banaras railway station? तो मंदुआदी जो रेलवे स्टेशन है वो किस स्टेट में है जिसको रीनेम किया गया है बनारस रेलवे स्टेशन? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यूपी। सो जो मंदवादी जो रेलवे स्टेशन है वो उत्तर प्रदेश में है, एंड जो मंदवादी है वो एक प्लेस है वाराणसी का। तो जो ये रीनेम है उसकी जो रिक्वेस्ट है वो आवर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ने की थी, जो कि मनोज सिन्हा है। जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मनोज सिन्हा है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, और जो यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ उनको एज ए रिक्वेस्टिंग लेटर दिया था कि जो मंदुआदी जो रेलवे स्टेशन है उसका जो नेम है वो चेंज करके बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया जाए। सो दिस रिक्वेस्ट इज मेड बाय आवर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मनोज सिन्हा टू यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। Next is the turn of question number 29.
Jharkhand government has introduced the new system emblem recently. What is the state animal of Jharkhand? तो जो इंडिपेंडेंस डे था जो कि 15 अगस्त को था, उस पे जो झारखंड की जो गवर्नमेंट है उसने एक न्यू जो स्टेट का जो एम्बलम है वो एक न्यू डिसाइड किया था, और उसकी जो लोगो है वो अफेक्ट में आई थी या फिर अप्रूव्ड की गई थी 15 अगस्त 2020 को। तो जो झारखंड है उसका जो स्टेट एनिमल क्या है? देर आर 4 ऑप्शंस: ए इंडियन एलिफेंट, बी लियोपार्ड, सी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड डी ग्रेट हॉर्नबिल। So name the state animal of Jharkhand. So the correct option is option A, Indian elephant. So this is a Indian elephant who is the state animal of Jharkhand. Next is the question number 30. Name the Indian cricketer who has been appointed as the brand ambassador of Oakley. So this Oakley is a sport eyewear brand, and name the brand ambassador of Oakley, and this brand ambassador is an Indian cricketer. So there are 4 options: A Jasprit Bumrah, B Rohit Sharma, C Virat Kohli and D Suresh Raina. I hope you are now feeling relaxed because this is the last question of today's current affair classes. Of 3 days current classes. So the correct option is option B, Rohit Sharma. So Rohit Sharma has been appointed as the brand ambassador of Oakley, who is a sport eyewear brand, and this appointment as a brand ambassador is for the period of 2 years in India. So I hope you like this class, and sorry for that I did not give you the class of current affairs for 3 days, and further I will try to give class on the daily days. So I'm sorry again. Thank you very much. Have a nice day. And if you are feeling any problem, that you can contact us on our comment box, and take a link of the WhatsApp group from the description box, and you can join us and take a solution of your problems. Thank you very much again.